Assalamu alaikum, students. Chapter number 3, Productivity, Output and Employment. Last week we have completed chapter number 2, Measurement of National Economy, National Income Account. The main topics of chapter number 3 are concept of production, production function, demand for labor, factors of demand, supply of labor, factors of labor supply, labor market equilibrium, full employment level of output, and full employment level of employment, concept of unemployment, different measures of unemployment, and Okun's law. Okun's law theory shows the relationship between output and unemployment. Concept of production. Production is a process in which firm transform inputs to output. Production refers to all of the activities involved in the production of goods and services, from borrowing to set up or expand production facilities to hiring workers, purchasing raw material, running quality control, cost accounting, and so on. The result of production output can also be a service rather than a good, such as education, healthcare services, and financial services, banking, insurance, and other activities. Production function, production equation, or production model. In microeconomics, we have understand basic production function, Cobb-Douglas production function. Output is function of capital and labor. Q is firm output. Q is symbol of firm production, and in macroeconomics, we will replace Q uh, Y. Y is symbol of national output or real GDP. So in macroeconomics we use this production function. So y equals to a k power alpha and power beta. So y is real GDP or total production of economy. F is mathematical symbol that relate output to input used. K is quantity of capital stock. Capital stock is main part of fixed investment. Quantity of machinery. N is total labor force. Quantity of labor used in the time period. What is alpha and beta? Alpha is share of capital in output, and beta is share of labor in output. Share of inputs in output vary country to country, but theoretical we use K point 3 and labor point 7. This means share of theoretical share of capital in output is 30% and theoretical share of labor in output is 70%. But in practical, अगर हम compare करें, if you compare Pakistan with Japan, so Japan is a tech industrial country, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चरल कंट्री. तो जो शेयर होगा कैपिटल का जापान के अंदर, तो शेयर ऑफ कैपिटल इन जापान ग्रेटर देन शेयर ऑफ लेबर. तो इन केस ऑफ जापान, शेयर ऑफ कैपिटल में बी 0.6 एंड शेयर ऑफ लेबर 0.4. बट अगर हम वर्ल्ड को वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हम ऑब्जर्व करें, तो ज़्यादातर जो कंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास एग्रीकल्चरल कंट्रीज होती हैं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना, और ज़्यादातर कंट्रीज़ हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इन एग्रीकल्चरल कंट्री शेयर ऑफ कैपिटल आपका कितना होता है, 30% होता है, और शेयर ऑफ लेबर कितना होता है आपका, 70% होता है. तो अल्फा एंड बीटा सैम्बल्स हैं. तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर अल्फा हो, यहाँ पर गेमा भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास कोई और सैम्बल भी हो सकता है. बट कॉन्सेप्ट ऑफ capital and labor powers are both shows the share of inputs in output.
A is total factor productivity. Total factor productivity of any country refers to technology एंड लेबर स्किल्स। देखिए लेबर स्किल्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपकी लेबर ज़्यादा एजुकेटेड है, दिस मीन्स उनका आउटपुट आपके पास क्या होगा? ज़्यादा उनका आउटपुट होगा। वर्क और प्रोडक्शन को लेस टाइम के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, दिस मीन्स प्रोडक्शन एबिलिटी क्या होती है उनकी? ज़्यादा होती है। तो ये जो एजुकेशन इंक्रीज होने से फैक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, या मशीन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जो उसकी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है। इन तब चीज़ों को हम मेजर करते हैं किस चीज़ से? इसको हम मेजर किया जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आपके पास टेक्नोलॉजी एंड लेबर स्किल्स। तो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी को हम मेजर बना सकते हैं। इसकी मदद से हम आंसर दे सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर एजुकेशन कितना इंक्रीज हो रहा है। हम आंसर दे सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कितनी हो रही है। हम आंसर दे सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेनिंग कितनी हो रही है, और किस कंट्री के लेबर कितने एक्सपीरियंस है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर दुबई के अंदर एक पाकिस्तानी, इंडियन और अमेरिकन लेबर्स हों और सबकी क्वालिफिकेशन सेम हो, तो जो कंपनी होगी वो सबसे ज़्यादा जो ऑफ़र करेगी, वो किसे ऑफ़र करेगी? वो सबसे ज़्यादा ऑफर्स अमेरिकन को करती है, उसके बाद इंडियंस को, उसके बाद पाकिस्तानी को। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आपके पास ज़्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। जो वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट आपके पास एक्टिव है, उससे ज़्यादा अमेरिकन यूज्ड हैं, क्योंकि वो अपनी डेली बेसिस लाइफ के अंदर उससे ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं? इंगेज होते हैं। इंडियन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंगेज हैं, तो उनकी जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीज हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी क्या होता है आपके पास? एक टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को मेजर बन सकता है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब आपके पास क्या होता है? कि हमारे जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स की प्रोडक्शन कितनी आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो इनपुट्स, कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड लेबर एजुकेशन, ये दोनों हमें आंसर किस चीज़ का दे रहे होते हैं? ये आंसर दे रहे होते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जब हम डिफरेंट कंट्रीज को मेजर कर रहे होते हैं, तो मेजरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? कि किस कंट्री की फैक्टर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन। इस इक्वेशन में से हम ए को डिपेंडेंट बना दें। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइड बाय कैपिटल स्टॉक एंड लेबर, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज शेड्यूल ऑफ अमेरिकन वेरिएबल्स ड्यूरिंग 1979 to 2007। Y is real GDP, बिलियन डॉलर्स, कैपिटल स्टॉक बिलियंस, और लेबर हमारे पास क्या है? मिलियंस के अंदर है। तो अगर हम पाकिस्तान का भी अगर आप देखें, मैंने आपके साथ एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स आपके साथ शेयर की थी, उसके अंदर आपको आउटपुट भी गिवन था 1962 अप टू डेट, और कैपिटल स्टॉक भी आपको गिवन है, लेबर्स भी आपके पास गिवन है, टोटल लेबर फोर्स भी गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो ए इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। 1979 टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज 15.58। 80, 81, 82, 83 एंड total factor productivity. Let's look at this question. Data of United States 1960 to 2007. This is a decade wise data. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बाय व्हाट परसेंटेज डिड यूएस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रीव बिटवीन 60 70, 70, 80 एंड 80 90, ठीक। तो हमें डिकेट वाइज हमें बताना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की फैक्टर प्रोडक्टिविटी किस तरह आपकी राइज हो रही है, ठीक। देखें, तो सिंपली वी पुट values in formula. Formula of total factor productivity A equals to real GDP divided by capital and labor. So 1960 output is 2502,
1960 capital stock 2695 power point 3, and number of labor 65.8 million point power point 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन 1960। और 1970 आउटपुट 1970, कैपिटल स्टॉक 1970 एंड लेबर फोर्स 1970। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन 1960 एंड 1970। लाइक कॉलम नंबर 4 क्या शो कर रहा है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखें, हमें जो आंसर चाहिए, आंसर हमें दे रहा है कॉलम 4 नहीं दे रहा, आंसर हमें कौन दे रहा है, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 हमें क्या बता रहा है कि ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी 1979 में 15.58 है और 80 में कितनी है, 15.32। तो चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमारे पास कितना आ रहा है, -1.7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1979 टू 1980 यूनाइटेड स्टेट्स की जो फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, वो आपकी क्या हो रही है, फॉल हो रही है 1.7 से, यानी कि ग्रो नहीं हो रही। हालांकि आउटपुट आपके पास क्या है, आउटपुट में जो डिक्रीज आ रहा है बहुत कम आ रहा है, 5.5173 से डिक्रीज कितना हो रहा है, 5.62। जीडीपी आपका डिक्रीज हो रहा है जो कि 0.56% आपके पास है, लेकिन फैक्टर प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज कितना आ रहा है, -1.7। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आंसर किस चीज़ का दे रहा होता है कि आपकी कंट्री के अंदर एजुकेशन लेवल कितना राइज हो रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी एडवांसमेंट है, वो आप कितना राइज हो रहा है। अगर आप अपनी मशीन्स को एडवांस नहीं करोगे तो आपके आउटपुट के अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर आपके लेबर्स एजुकेटेड नहीं होगी, लेबर की स्किल्स इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेबर का प्रोडक्शन के अंदर जो शेयर है वो आपका क्या रहेगा, आपका वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसका आंसर हमें कौन दे रहा होता है, ग्रोथ इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और ग्रोथ हम किस तरह मेजर कर रहे होते हैं, करंट फैक्टर प्रोडक्टिविटी माइनस प्रीवियस फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिवाइड बाय प्रीवियस फैक्टर प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 80 के अंदर माइनस में, इन 1981 टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी +0.6, 82 हमारे पास क्या है, -2.2, है ना। तो ये ईयर्स जिसके अंदर -2.2 आ रहा है और -1.7 है, ये वो ईयर है जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर वार के अंदर आपका इन्वॉल्व हो चुका था ना। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ आपके पास क्या कर रहा था, अफगानिस्तान के अंदर वार उसने स्टार्ट की थी। उसके अलावा उसने दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज। उसके बाद अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की फैक्टर प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है, पॉजिटिव वैल्यूज है। ओनली 2001 के अंदर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, -0.1। उसके बाद आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी शोज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड लिटरेसी रेट। तो प्रोडक्शन फंक्शन, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं लेबर डिमांड। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर डिमांड। Short run production, long run production, we have already understand this topic. In short run means at least one input is fixed, and long run production means all inputs are value. Firm can change labor and capital both. ठीक है। In microeconomics, we have understand theories of production, थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। एक थ्योरी हमने अंडरस्टैंड की थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने अंडरस्टैंड किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने अंडरस्टैंड किया था। ठीक है। तो किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन बिहेवियर हमें देखना हो तो हम ग्राफिकली किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, वाई एक्सिस आउटपुट एंड एक्स एक्सिस नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है, फॉर शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर कैपिटल आपका फिक्स होता है, और लॉन्ग रन के अंदर हमें
किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैपिटल भी रख सकते हैं और कैपिटल की जगह हम लेबर भी रख सकते हैं। तो लेबर इंक्रीज होने से आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैपिटल के इंक्रीज होने से आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो कर्व होती है वो नॉर्मली किस शेप के अंदर होती है, इनिशियली आपकी फ्लैट होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्टीप होना स्टार्ट होती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन result of three stages of production: initially output increase at increasing rate, then output increase at decreasing rate। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा था। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमें क्या आंसर दे रहा होता है, ये हमें आंसर दे रहा होता है कि लेबर इंक्रीज करने से आउटपुट में कितना इजाफा होता है। और फर्म जब किसी लेबर को हायर करती है तो उसे एक लेबर को हायर करने से आउटपुट के अंदर कितना फायदा होता है। तो बेनिफिट ऑफ एडिशनल लेबर इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, सेम एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। तो बेनिफिट ऑफ एडिशनल कैपिटल, फर्म अगर एक मशीनरी इंक्रीज करती है तो उस मशीनरी से उस फर्म को कितना बेनिफिट होता है, इसका आंसर हमें कौन देता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल, एंड एमपीएल इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, ठीक है। तो these are some revision concepts in microeconomics. We have understand if share of labors, share of inputs, alpha and beta equals to 1, this means constant return to scale। जितना हम inputs लगा रहे हैं उतना ही हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दिस मीन्स इनपुट्स हम कम लगा रहे हैं और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अल्फा प्लस बीटा शेयर ऑफ इनपुट आपका कम है, लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या था, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनपुट्स हम ज़्यादा लगा रहे हैं और आउटपुट आपका क्या कम आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रिवीजन स्लाइड्स हैं मैंने अपलोड किए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या एक्सप्लेन करता है, थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपके क्या रिवीजन आपकी स्लाइड्स हैं। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपका इम्पैक्ट कर रहा होता है ड्यू टू टू मैन फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज एडवर्स सप्लाई शॉक एंड अदर वन इज बेनिफिशियल सप्लाई शॉक, ठीक है। लेट्स सपोज इन दिस डायग्राम output y-axis, labor in x-axis, this one is initial production function, or this shows let's suppose 40 million labor force, at 40 million labor force output is 70, and 40 million labor force output is 50 million, ठीक है। तो shocking production function, adverse supply shock means any shock that decrease level of output like flood, earthquake and other natural disaster। like आप से अगर हम आप 2005 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आपके पास आया था, जिससे पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, स्पेशली जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो अर्थक्वेक के बाद क्या होता, आपके पास लेबर फोर्स तो आपका सेम था, सेम लोग विलिंग टू वर्क और एबल टू वर्क थे, बट अब आपकी आउटपुट क्या हो गया था, आपका डिक्रीज हो गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर फ्लड आ जाए तो फ्लड आने से क्या होता है, आपके पास फ्लड आने से हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो आपकी डिस्टर्ब होती है और एग्रीकल्चर सप्लाई आपकी क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। तो एडवर्स सप्लाई शॉक का मतलब क्या होता है, कि जब भी एडवर्स सप्लाई शॉक आएगा प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट डाउन टू राइट। तो दिस मीन्स अगर ये लेबर फोर्स है 70, हमारे पास क्या है, आपकी लेबर फोर्स है, तो इनिशियल आउटपुट हमारा ये था। तो ड्यू टू एडवर्स सप्लाई शॉक, फ्लड, अर्थक्वेक और एनी अदर नेचुरल डिजास्टर्स, हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई, आपके पास डिक्रीज हो गई, ठीक। तो एडवर्स सप्लाई शॉक डिक्रीज आउटपुट, अदर थिंग रिमेन सेम। बेनिफिशियल सप्लाई शॉक इंक्रीज आउटपुट, बेनिफिशियल सप्लाई शॉक मीन्स आपको हमारी कंट्री के अंदर कोई ऑयल का रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो जाए, या पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की आपके पास क्या है कोई
बहुत बड़ा आपके पास गोल्ड के रिसोर्सेस आपके फाइंड हो जाए, तो इनसे क्या होगा, आपके पास सेम लेबर फोर्स पे हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेनिफिशियल सप्लाई शॉक, प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन कर्व शिफ्ट लेफ्ट टू अप, और एडवर्स सप्लाई शॉक, प्रोडक्शन डिक्रीज, प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट डाउन टू राइट।